Pakistan cricket at its best. 1 minute down, next minute up. Thanks very much, everybody, for joining me once again. I'm delighted to have a regular contributor to Pak Passion with me once again, former Pakistan international cricketer, played cricket in Pakistan for many years, played a lot of club cricket in the UK also, ECB level 4 qualified coach. He's worked at Lancashire, Lahore Qalandars, worked in Pakistan coaching system, and also he's scouted for the ECB here in England, and he's currently the Germany head coach. Once again, Atiq Zaman. Atiq, I hope you're doing well. Assalamu alaikum. Yeah, I'm very good. What about you? Yeah, all good. Thank you very much, brother. I think let's start with a little bit of domestic cricket discussion. At the moment, the National T20 Cup is going on in Pakistan. Am I wrong, or is this an over 35s only league? Because when I look at the teams, it looks like most of the players are over 35, whilst youngsters are sitting and watching and carrying the towels. The thing is, you never get surprised with the PCB. When the decision making comes into the play, you always feel like there are lack of knowledge, lack of decision making, lack of making sense and stuff like that. So yeah, it's disappointing because you want under 19 players to grow. Yeah, you want them to have a best experience of the best possible higher standard of cricket under their belt. So when they go and play for Pakistan, they are actually capable to play for Pakistan. You can see now in New Zealand, you just put the fresh faces in there. They've got not much experience in domestic cricket. They have not played much cricket, and now they're struggling. So, when it comes for the grooming, nurturing the players properly, showing some system, they come from system, PCB lacks with it, and they've been lacking it for years, and I would say for decades. We'll come to the Pakistan-New Zealand series soon, I think. But I just want to ask you about mentors. How can you have somebody who's a mentor who's also still playing in domestic cricket and is being picked ahead of youngsters? This makes no sense, does it? It doesn't. It doesn't make any sense at all. When I start coaching, I completely left cricket. Cricket means I'm still fulfilling my passion playing club cricket and stuff like that. But, in terms of elite cricket, first class cricket, I can't coach and play. It's completely different. And I don't understand if a player who wants to be a coach or mentor is still thinking he's got playing days left. So let them play first, let them retire, and then bring them into it. It's ridiculous to see Wahab Riaz wanted to play, and he was a chief selector, he was a coordinator, he was the right angel of chairman and stuff like that. It doesn't make sense to me. All mentor situation doesn't make sense to me. It does in terms of if they're doing some great work, producing players and, giving PCB some players in a couple of years' time, a couple of months' time, it will make sense. But at the minute, everything looks messy. Pakistan, Atiq bhai, look, we know that the players aren't very well paid in domestic cricket. Khelte Zyadatar, they are not very well paid. They make ends meet with moderate salaries. Like PCB are cutting the salaries once again. What are your thoughts on that? PCB की ये पुरानी ट्रेडिशन है कि जिनके पास करोड़ों और अरबों रुपया है ना, उनको और पैसा बांटो, और जो बेचारे गरीब हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं, जो बेसिकली जिन लोगों के दम पे क्रिकेट चल रही है, जिन लोगों के दम पे पीसीबी खड़ा हुआ है, उन बेचारों को पैसे नहीं मिलते. ठीक है, हाउ कैन यू डू दैट? मेरी पाकिस्तान में क्रिकेट छोड़ने की सब में बड़ी वजह ये भी थी कि मैं ये देखता था कि यार मुझे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का फायदा क्या हो रहा है. तो पाकिस्तान टीम अलग पॉलिसी सिलेक्शन नहीं हो रही, और दूसरा ये कि फाइनेंशियली कोई बेनिफिट नहीं था, अपनी जेब से ही पैसे लगते थे. तो अब मैंने सुना एनालिस्ट बेचारे इतना काम करते हैं. देखिए, हर सपोर्ट स्टाफ पीसी में जो भी एम्प्लॉय है, आपने उनकी सैलरी रखी है. हाउ कैन यू कट देयर सैलरी डाउन टू हाफ? 1,35,000 ले रहे थे, उनकी सैलरी 65 हो गई. लोग छोड़ के जा रहे हैं यहाँ से. यार क्या करेंगे 65,000 में? यहाँ पे चीजें महंगी हो गई हैं, महंगाई डबल हो गई है, और सैलरी कम हो रही है. ये बहुत गलत बात है कि आप है ना, ठीक है, मेंटोर्स को 50 लाख रुपए दे रहे हो महीने, तो दो, मैं नहीं कहता नहीं दो, मगर जो उसके नीचे हेड कोचेस हैं, उनके प्लेयर हैं, उनको भी तो नवाजो ना यार.
मेंटर को तो फ्री में काम करना चाहिए, इन्होंने तो लाखों अरबों रुपए डॉलर कमाया है यार कमेंट्री से, खेलने से। मैं ये नहीं कह रहा चलो फ्री में काम करें, ठीक है, एवरीबडी डिजर्व टू गेट पेड इफ दे स्पेंडिंग टाइम डूइंग समथिंग ग्रेट, मगर कंपैरिजन तो थोड़ा सही होना चाहिए ना। आप ठीक है 50 लाख रुपए भी दे रहे हो, 50 लाख के बाद वो टीवी पे नौकरियां भी कर रहे हैं, टीवी में भी बैठ रहे हैं, कोई वहां बैठ रहा है, कोई वहां कमेंट्री कर रहा है, यार ये कब से शुरू हो गया। हम जब पीसीबी में गए थे तो हमें इनको पैसे देते हुए इनकी जान निकलती थी, उस वक्त जान निकलती थी, उसके बाद हम कोई दूसरा काम साइड में कर ही नहीं सकते थे, हम अलाउ ही नहीं था। पीएसएल करने नहीं दिया, कराची किंग्स मेरे पास आई, मेरे पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, पीएसएल नहीं करने दिया पीसीबी ने। पाकिस्तान वुमेन्स टीम चाहती चाहती थी कि मैं चले जाऊँ, नहीं 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 नहीं, आप यहीं रहेंगे, आप एनएचपीसी में तो एनएचपीसी में रहेंगे। तो भाई अब मेंटर को फिर मेंटर भी करो ना, ये क्यों हर जगह से पैसे बटोर रहे हैं। ठीक है, अगर पाकिस्तान के लिए काम करना है, अगर आप समझते हो ये काम करना है, मैं गारंटी से कहता हूँ इन्हीं मेंटरों को आप 10 लाख रुपए महीने में लाओ, कोई भी तैयार नहीं होगा पाकिस्तान के लिए काम करने में। ये पैसा आपने इतना फेंका है, ठीक है, आप उसको अट्रैक्टिव बना रहे हैं, मगर प्लेयरों को भी तो दो ना, तो ताकि प्लेयरों को भी कोई फायदा, जो जो बेचारे मेहनत करते हैं, जो अपनी बॉडी और अपनी टाइम का ना इन्वेस्टमेंट कर कर आते हैं, तो दे डिजर्व टू गेट पेड बेटर। सो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि प्लेयर्स की सैलरी बढ़ने के बजाय कम हो रही है। I think, well, let's talk a little bit about New Zealand and Pakistan. Obviously, it's a five-match series, so there's still some matches to come. Like, and जैसे Pakistan has start किया in the first couple of matches, it's been really disappointing. Look, I understand the policy of let's give Babar and Rizwan and other players a rest. Youngsters को chance though. लेकिन I think by surely you bring players in who are good enough to play international cricket. Is it a case of these players have been brought in too soon, or what's the situation? देखिए, सिलेक्शन का एक पाथवे होता है, ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है कि आपने अपने कारतूस चलाए, सालों साल चलाया, उनको चलाते रहे चलाते रहे चलाते रहे चलाते रहे, फिर अचानक करके आपने उन सबको बिठा के यंगस्टर को लाया। भाई यंगस्टर को लाने के लिए आपने उनको पाकिस्तान शाहीन में चांस दिया, उन्होंने पाकिस्तान शाहीन से परफॉर्मेंस की, ठीक है। मैं एक मिसाल देता हूँ रोहिल नजीर की, ठीक है, रोहिल नजीर को हर लेवल की क्रिकेट खिलाई, डोमेस्टिक में भी परफॉर्म करता है, पाकिस्तान शाहीन के लिए खेलता है, वहां भी परफॉर्म कर देता है, पाकिस्तान टीम में लेकर आया जाता है, उसको बिठा के वापस कर दिया जाता है, फिर उसको वापस पूछा ही नहीं जाता। आप रोहिल नजीर को खिलाते ना सीरीज में, क्यों नहीं खिलाया, इतनी इन्वेस्टमेंट की है, उसको चांस देना चाहिए था कि he had an experience behind his back, he had played first class cricket for ages, he's been playing for Shaheen, he's been captain of Shaheen as well few times, तो उसको चांस देना चाहिए था ना। आपने दूसरों को बिठा के किसी और को खिला दिया यार। आप जो खिला रहे हो जिन बंदे को, आप उनकी भी कैपेबिलिटी देखनी चाहिए कि आपने उनको इनफ ग्रूम किया है पीछे बिठा के। अगर इनफ ग्रूम नहीं किया देन यू बेसिकली थ्रो इन देम इनटू द डीप वाटर, और यही हो रहा है ना बेचारे। वो मैं नहीं कहता प्लेयर खराब है, ठीक है, होगा टैलेंट इसमें, होगा कुछ देखा होगा सेलेक्टर्स ने, कुछ उनकी एस्पेक्ट्स देखे होंगे, कुछ एबिलिटीज देखी होंगी, स्किल्स देखी होंगी, इस वजह से सिलेक्ट किया, मगर हैव यू गिव देम इनफ टाइम टू ग्रूम to be able to cope with these kind of pressure? New Zealand is not the easiest play भाई, यहाँ पे कोई भी परफॉर्म नहीं करता पाकिस्तान के लिए, बहुत कम ऐसे प्लेयर है जो जाके बैटिंग में रन्स करते हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं करता। तो आपने यंगस्टर को खिला दिया, अब क्या होगा, आपने खिला दिया, देखो भाई हमने यंगस्टर को खिलाया था, अब उन्होंने कुछ नहीं किया, अब अगली जो अच्छी सीरीज होगी, होम सीरीज होगी, उसमें आप अपने दोबारा से तुरम खानों को ले आओगे। यार इस तरह की प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आपने इन लोगों को ग्रूम करना ही था तो आप इनको पहले होम सीरीज में चांस दें, अपनी कंडीशन में खिलाएं, जो अपनी कंडीशन में खेल खेल के थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस आएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट आसान नहीं होती, मगर अपनी कंडीशन में थोड़ी बहुत ईज हो जाती है, और एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका डिफरेंट होता है कि आप पाकिस्तान में खेल रहे हो, आपको पिच का पता है, सारी चीजों का पता है। न्यूजीलैंड में तो यार आप दुनिया को पता है कि आप न्यूजीलैंड इंग्लैंड जाते हो, आप स्ट्रगल करते हो, ऑस्ट्रेलिया जाते हो स्ट्रगल करते हो, और आप वहां पे जाके डेब्यू करा रहे हो यार। इतने लड़कों के आपने टीम का पूरा फॉर्म कोई ना कॉम्बिनेशन ही चेंज कर दिया। नहीं तो समझ में नहीं आ रहा कि बैटिंग ऑर्डर क्या चल रहा है, मैं तो समझ से बाहर है कि यार क्या चल रहा है पाकिस्तान टीम में, कि आप इस तरह भी नहीं करते बायस थिंग कि आप पूरा देखें। आपकी रैंकिंग भी फर्क पड़ती है, जब आप हारते रहते हो आपकी रैंकिंग भी डाउन जा रही हो, तो उसमें भी बहुत फर्क पड़ता है। तो आपने अपनी रैंकिंग को भी साथ में देखना होता है। अगर आपने नए लड़के को चांस देना, उसको अराउंड सीनियर प्लेयर चांस दो, ताकि वो कम से कम उसके साथ बैटिंग करे, तो उसको एक एडवांटेज हो कि यार मैं एक प्लेयर के साथ खेलूं जिसके 5-6 हजार इंटरनेशनल के रन हैं ऑलरेडी। मगर वो बेचारा आता है, उसको समझ में नहीं आ रही, उसने पहली गेंद आके उसने मार दी, फिर उसने दूसरी तरह से 2 दफा थर्ड मैन पे आउट हो गया। भाई ऑन दी अपशॉट इतनी आसानी से नहीं लगता न्यूजीलैंड में, तो एक स्ट्रेटेजी भी देनी चाहिए अगर आप किसी को खिला रहे हो। तो मुझे तो लगता है कि यार कोई टीम प्लानिंग ही नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, और कोई प्रोसेस नजर नहीं आ रहा। ठीक भाई, हारिस राउफ ने कहा कि हम लोग जो पाकिस्तानी है क्रिटिसाइज बहुत करते हैं प्लेयर्स को, टू मच क्रिटिसिज्म, और जो यंगस्टर्स है उनको 10-15 मैच
they need to be given 10-15 matches before they can establish themselves and we can properly analyze them. Fair comment, Atik bhai. मेरे ख्याल से सही कमेंट है। हम लोग बहुत जज्बाती कौम है, और हम लोग है ना बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं, जज करना शुरू कर देते हैं, बहुत जल्दी डिसीजन बना लेते हैं कि यार ये खराब है, ये अच्छा है, ठीक है यंगस्टर को खिलाया तो उसको कंप्लीट चांस दो, इतना चांस दो कि उसके बाद आपको एक पता चल जाएगा यार हमने तो फेयर चांस दिया था मगर ही कुड नॉट परफॉर्म। उसके बाद उसको निकाल के नहीं फेंक दो, उसके बाद उसको पाकिस्तान की शाहीन में ले जाओ, वहां पे ग्रूम करो, क्योंकि आप जिस प्लेयर को पाकिस्तान खिला रहे हो ना, तो आपने कुछ सोच समझ के खिलाया है। देखें टेस्ट कैप और इंटरनेशनल कैप ये कोई मामूली चीज नहीं है कि आपने ये देखा बांट दी किसी को। अगर आपने किसी को इस काबिल समझा और दिए तो उसको चांस दो। अगर वो परफॉर्म नहीं करता उसमें, स्टिल गुड इनफ, आप उसको ग्रूम करो नीचे एकेडमीज में, और शाहीन के लिए ग्रूम करो, और फिर उनको ऊपर लेकर आओ, दोबारा लेकर आओ। क्योंकि यार पाकिस्तान में कोई इतना बड़ा पूल थोड़ी है कि 100 बंदा बैठा हुआ तैयार बैठा हुआ खेलने के लिए। पाकिस्तान में लिमिटेड प्लेयर्स हैं जो इस लेवल के हैं, उनको अगर आप सही तरीके से ग्रूम करोगे तो वो आगे चल के पाकिस्तान की एक बैकअप बैकअप बन जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है आपने यंगस्टर्स को चांस दिया, मगर यंगस्टर्स को आपने बगैर कोई एक्सपीरियंस के चांस दे दिया उनके टैलेंट को देखते हुए। और टैलेंट ही हर चीज नहीं होती भाई, क्रिकेट में बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको जिनको को टेक करना पड़ता है परफॉर्मेंस करने के लिए। तो में और अब हमारे पास एक सबूत हो जाएगा कि हमारे पास एक एक्सक्यूज हो जाएगी, हमने तो यंगस्टर्स को चांस दिया। बारिश की बात ठीक है एक तरह से, मगर एक तरह से मैं ये भी सोचता हूँ यार पब्लिक डिजर्व करती है यार थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है ना। आप पाकिस्तान की नेशनल टीम के लिए खेलो, जब आपने सितारा पहना हुआ देन यू हैव टू परफॉर्म यार। यू इफ यू फेल ओके अंडरस्टैंड दैट, देन परफॉर्म नेक्स्ट डे। इफ यू कीप ऑन फेलिंग एंड देन कम इन ऑन द प्रेस कॉन्फ्रेंस saying पाकिस्तान पब्लिक जज्बाती है, ये है वो है, भाई है हम जज्बाती, आप करके दो ना। इट्स अ परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स, इट्स नॉट अ के ना समडे वी विन समडे वी लर्न। ये चीजें नहीं बताओ भाई, ये फजूल है। लर्निंग आप पहले कर आओ, यहाँ पे सिर्फ विनिंग विनिंग की बात करो। हारते हो तो ठीक है, हारने से सबक सीखो, मगर उसके बाद आके प्रूव तो करो कि हमने कुछ सीखा है। ये क्या कि हम लर्न करें, भाई क्या लर्न कर रहे हो बताओ तो। हमेशा सुना कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है। अब भी अतीक भाई वी कीप हियरिंग पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, लेकिन द गाइज हु आई एम वाचिंग रिसेंटली और जो प्लेयर्स आ रहे नए भी आ रहे इंटरनेशनल क्रिकेट में, मुझे तो इतने टैलेंटेड नहीं लग रहे हैं। अतीक भाई, एम आई बीइंग टू हार्श और इज द टैलेंट स्टिल देयर? यार देखें टैलेंट, पाकिस्तान का क्रिकेट का टैलेंट कभी खत्म नहीं हो सकता। ये इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि लोग कहाँ कहाँ से कैसे कैसे इलाके से क्रिकेटर बन रहे हैं। मगर अब क्रिकेट खान इंजमाम भी सुपर टैलेंटेड, मगर उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली ही होती थी इतने इतने साल, उन्होंने परफॉर्म किया तो उनको पता था सेंचुरियां बननी है, तो वो आके ठक करके परफॉर्मेंस भी कर जाते थे। अब वो जमाना नहीं रहा, दुनिया कहाँ पहुंच गई है। हम पता नहीं पीसीबी की वेबसाइट पे अजीब अजीब सी वीडियो लगती है, मुझे देख के हंसी आनी शुरू हो जाती है यार। अगर आप कोई बात कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अभी एक इनोवेशन की बात हो गई कि इनोवेशन, लोग कहता है इनोवेशन को, इनोवेशन क्या थी कि एक प्लेयर स्कूप मारा था, यार ये कौन सी इनोवेशन है? ये आज से 25 साल पहले माइकल 30 साल पहले माइक गेटिंग ने कर दी थी, ठीक है, जावेद मियादत ने कर दी थी। आप अगर उसको प्रैक्टिस करा रहे हो, किसी चीज की प्रैक्टिस करा रहे हो ऑन पर्पज, आप मुझे बताओ कि न्यूजीलैंड में क्या बॉलर आपको यॉर्कर मारेंगे? यहाँ पे तो हार्ड लाइन पे गेंदें होती हैं क्योंकि विकेट हार्ड होता है। तो आप पुलों की हुकों की प्रैक्टिस करो कि आपने वहां पे रन कितना बनाने हैं। आप अपर कट की प्रैक्टिस करो, आप स्कूपों की प्रैक्टिस करो। दुनिया कहाँ पहुंच गई, आप स्कूपों पे लगे हो, फिर कहते हो कि ना। अच्छा फिर ये भी नहीं है कि अगर आप प्रैक्टिस कर भी रहे हो तो इतनी गंदी प्रैक्टिस हो रही है ना कि उसकी एक्सिक्यूशन नहीं हो रही, ना उसका सर ना उसका कोई पैर, कोई नजर ही नहीं आ रहा कि हाँ यार कोई क्वालिटी वर्क गोइंग ऑन इन द प्रैक्टिस सेशन। फिर आप उनको है ना हाईलाइट कर रहे हो दुनिया में, यार इतनी मैं कह रहा हूँ नॉनसेंस वीडियो पीसीबी चलाता है। कभी कभी मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि मीडिया जो मैनेजर है और जो आपका सोशल मीडिया चला रहा है, उसको कम से कम इतनी सेंस होनी चाहिए कि वो वीडियो लगाए तो उस वीडियो की एक अहमियत होनी चाहिए कि दुनिया देखे तो बोले यार यार दिस इज समथिंग वेरी गुड। हम क्रिकेटर हम देख के हमें अफसोस होता है। मैंने बहुत दफा कमेंट करती है, मैंने कहा यार खुदा के लिए कोई अच्छी वीडियो लगाओ, ये क्या कर रहे हो आप लोग। तो टैलेंट है, टैलेंट है, मगर उस टैलेंट को ग्रूम करना उस लेवल पे देखें दुनिया कहाँ पहुंच गई। दुनिया अब साइंटिफिक तरीके से क्रिकेट खेलती है। आप दुनिया के प्लेयरों के छक्के देखें ना, जब वो छक्के मार रहे होते हैं ना, तो सेकंड टीयर थर्ड टीयर पे जा रहे हैं, कुणाल पांड्या वगैरह जब मारे होते हैं, हमारे लड़कों के रोपों पे जाके गिरते हैं, बाउंड्री पे कैच हो जाते हैं छोटे छोटे ग्राउंड में। हम लोगों के यहाँ स्पोर्ट्स साइंस का सिस्टम नहीं है, हम लोगों के प्लेयरों के पास सिस्टम ही है। हम बैटिंग का कैंप लगा दिया इतना,
एवरेज कैंप लगा के उसमें बताओ मुझे कितने अपने प्लेयरों को ना इम्प्रूव कर दिया उस कैंप में? कोई अकाउंटेबिलिटी है उस कैंप की? कोई मेजरमेंट की है कि हाँ यार वो कैंप लगने से पहले उनका लगने के बाद ये लेवल हो गया? कुछ नहीं है, सिर्फ आके ड्रामा किया जा रहा है यहाँ पे, पैसों का बर्बाद किया जा रहा है। भाई आप वर्ल्ड के टॉप क्लास कोचेस ला के रखो, भले वो एशियन हो या फॉरेन हो, आप उनको साइंटिफिक तरीके से प्रैक्टिस कराओ। उनकी बॉलर्स की पेस में इजाफा होना चाहिए 4 से 5 किलोमीटर पर आवर। बैट्समैन की बैट स्पीड में इजाफा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए पहले ये बैट स्पीड थी अब ये बैट स्पीड हो गई। पावर रेटिंग का अच्छा टॉप क्लास कोच होना चाहिए, टॉप क्लास फील्डिंग कोच होना चाहिए वहां पे, कि जो मेजरमेंट्स करे फील्डिंग के कि यार हाँ हमारा परसेंटेज कैचिंग का ये था अब ये हो गया, हाँ हमारी थ्रो इतने सेकंड से 70 मीटर से कीपर के पास आती थी अब ये हो गई है। यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो बस ये कहते हैं ऐसे करोगे तो सिंगल है, ऐसे करोगे तो छक्का है। यार हम कहाँ बैठे हुए हैं भाई? अरे भाई हम बहुत पीछे हैं, हमारा जो लेवल है ना दुनिया, हम नहीं compete कर सकते, हम श्रीलंका से compete नहीं कर सकते अभी। आप श्रीलंका जाओ, श्रीलंका आपको धो देगी श्रीलंका में। और फाइनली अतीक भाई, आपने कहा स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, कोचिंग के बारे। रिसेंटली जेसन गिलेस्पी ने आकिब जावेद को कहा कि ये क्लाउन है, और बिहाइंड द सीन्स ही वाज टॉकिंग बिहाइंड द बैक्स वांटिंग द कोचिंग रोल। अल्टीमेटली ये जो परफॉर्मेंसेस है, आकिब जावेद हैज टू टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर इट, अतीक भाई। ठीक है, सब कोचेस जो हेड कोच हैं पाकिस्तान टीम के उनका एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, मैं दूसरों के बयानात पे अमल नहीं करता हूँ, सावर ग्रेप्स होते हैं उनको निकाला हुआ होता है, वो आगे बातें कर जाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में पॉलिटिक्स होती है, लॉबिंग होती है, हर प्लेयर के हर कोचेस के पीछे एक कोच लगा हुआ होता है, लॉबिंग कर रहा होता है। एक कोच को सैक करने वाला होता है, उससे पहले ही वो कोच अपनी लॉबी करके अपनी है ना पोजीशन उसकी जगह ले चुका होता है। तो पाकिस्तान में ये चीजें तो चलती है, मगर उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। यार परफॉर्मेंस बेस्ड स्पोर्ट्स है, अगर प्लेयर परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, ठीक है, प्लेयरों का बहुत बड़ा अमल दखल होता है कि वो कोचेस कोचेस को ऊपर ले जाते हैं टॉप पे, मगर उन प्लेयरों को मोटिवेट करना और अच्छी टीम को सेलेक्ट करना और परफॉर्मेंस क्रिएट करना, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना, एक मेथड बनाना, एक प्रोसेस बनाना एक अच्छे कोच का काम होता है, जो अभी तक नजर नहीं आ रहा और काफी अरसे से नजर नहीं आया पाकिस्तान टीम में। इतना कोच को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, बहुत दूसरे दूसरे कोचेस भी आए, वो भी गए, फेल हुए और गए, फिर दोबारा आए, फिर फेल हुए, फिर गए। बारियां चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, मेजरमेंट करने के कोई टूल्स नहीं है हमारे पास। हम बड़े सब्जेक्टिव एनालिसिस करते हैं, हम कहते हो यार चंगा आएगा। भाई कैसे चंगा आएगा? मुझे बताओ ना, कोई कोई इसकी थ्योरी बताओ कि चंगे की थ्योरी क्या होती है, कि उसकी मीनिंग क्या होती है। आपने किस तरह ये बात कर दी कि यार ये अच्छा प्लेयर है? तो हमारे पास एक प्रोसेस होना चाहिए, हम साइंटिफिक तरीके से चलेंगे, हम क्वालिफाइड बंदे को लाएंगे जिन्होंने क्वालिफाइड तरीके से मॉडर्न क्रिकेट के अंदर काम किया हुआ है वर्ल्ड में, वो आके आपकी एक कल्चर बनाएंगे और एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे और एक प्रोसेस बनाएंगे। हमारा प्रोसेस ही नहीं है, हम तो बेसिक हमारी अच्छी नहीं है, तो हमारी ऊपर की लेवल क्या अच्छी होगी? ये ऐसे ही चलता रहेगा साहिब भाई। Big भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। I know you're in Pakistan at the moment, so enjoy the trip, and we'll catch up with you very shortly. Thanks very much. Really appreciate your time, Atik. Bye. थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह Thank you. हाफिज। Allah Hafiz.